Assalamu alaikum students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and I'm your SST teacher Miss Varisha. Now we start our today's topic. Now please open the page number 3. Okay, so class हम पेज नंबर 3 तक रीडिंग कर चुके थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. Most of the water in the northern parts of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Gangas. The valley of the river Gangas is the most fertile part of India. The land is low-lying and there is plenty of water for irrigation. This is where most of India's agriculture takes place. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो पानी इस पूरे कॉन्टिनेंट में आता है वो कहाँ से आता है, नॉर्दर्न पार्ट से आता है, जिसमें दो बड़े दरिया शामिल होते हैं. कौन कौन से दरिया हैं? रिवर इंडस और रिवर गंगास, जिसे दरियाए गंगा भी कहा जाता है, जो कि इंडिया में पाया जाता है. ये दरियाए गंगा वो इलाका है इंडिया का जो सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ इलाका है, जो ज़मीन की सतह है वो नीची है और वहाँ पर आबपाशी के लिए बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है. और यही वो जगह है जहाँ पर इंडिया की ज़्यादातर काश्तकारी की जाती है. द रिवर गंगास एंटर्स द बे ऑफ बंगाल through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countryside floods almost every year when storms hit the coast in late summer, destroying crops and killing people and animals. अब वो ये कह रहे हैं कि दरियाए गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल से दाखिल होता है, जहाँ पर दरियाओं का रुख चेंज होता रहता है. और ये डेल्टा बांग्लादेश में पाया जाता है. उनमें हर साल सैलाब आता रहता है और गर्मियों में तूफ़ान आते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ की सारी फसलें तबाह हो जाती हैं और बहुत से जानवर और इंसान मर जाते हैं. नाउ प्लीज़ मूव टू पेज नंबर 4. द Deccan is a plateau, high land above sea level. This is fairly dry part of the subcontinent with about 1500 millimeter of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. Shown below is a relief map of Pakistan. You can see that parts of the north are very high indeed. These are usually colored white in relief maps to show that for most of the year they are covered in snow. You can also see the large parts of the country are deserts. In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming and most of that needs irrigation. So डेकान जो है वो एक बेसिकली एक प्लेट्यू है, सतह मुर्तफ़ा है जो समंदर की सतह से ऊंचा है, और ये इस इलाके का सबसे खुश्क हिस्सा है जहाँ हर साल 1500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है. और ये बहुत गर्म इलाका होता है जो फसलों के लिए ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होता. एंड पिक्चर देखिए, दिस इज़ द रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान. इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत हाइट पर मौजूद हैं. अब रिलीफ मैप में जो वाइट एरिया दिखाया गया है, देखें ये वाइट एरिया जो दिखाया गया है, ये वो एरिया है जो सारा साल बर्फ़ से कवर रहता है. इसका ज़्यादा हिस्सा डेजर्ट पर मुश्तमिल है. पाकिस्तान का 3 में से कोई एक हिस्सा ही ऐसा है जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. Much of the north and west of Pakistan consist of very high mountains. There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest in Balochistan. In the more sheltered valley of this region, fruits such as apple, grapes, oranges and apricot are grown. The western area of Pakistan is fairly high land which gets very little rainfall. It is of little use for crop farming. People are often have herds of sheep and goats, and in the drier season have to travel long distances to find food for the animals. सो जो पाकिस्तान का नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स पर मुश्तमिल होता है, और वहाँ बेसिकली बलूचिस्तान का इलाका लग जाता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट वगैरह बलूचिस्तान में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं.
Okay, now please move to page number 5. If it took a cross section of Pakistan along lines A, B and C, D, it would look like these drawings below. पेज नंबर 4 पे जो मैप देख रहे हैं आप लोग, इसमें देखिए ए और बी की लाइन बनाई हुई है और फिर सी और डी की। सो इसके दरमियान में जो सारे इलाके आ रहे हैं वो पेज नंबर 5 में मौजूद पिक्चर में है। फॉर एग्जांपल ए और बी की लाइन में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं? हिंदू कश, काराकोरम रेंजेस, पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंज, फैसलाबाद, इंडस वैली और सी। इसी तरह सी और डी में भी आ रहे हैं। नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 6। Geographical terms. These are some terms that you will read about in geography. They describe the physical features found on Earth. Okay, so geographical terms में कौन कौन से terms आ जाती है? Mountains, hills, plateau, plains, deserts, ये सब आ जाती हैं। so इनके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले mountains. mountains से कहते हैं पहाड़ों को। These are the highest lands. There is no fixed height at which a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2,000 to 3,000 meters. Some mountains like the Himalaya or Karakorams are sharp or pointed. This means that in terms of geography, they are young mountains between 1.5 to 66 million year old. Older mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind, so that they are more rounded. So जो माउंटेन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लैंड होते हैं, लेकिन इनकी हाइट कोई फिक्स नहीं होती। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ माउंटेन्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, लाइक हिमालय और काराकोरम। ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं, शार्प हैं। ओके, सो इसके बाद हिल्स क्या होते हैं? हिल्स छोटी पहाड़ी का सिलसिला होता है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी तरह बड़े नहीं होते, लेकिन इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कवर्ड होता है ग्रीनरी से, यानी ग्रास लगी हुई होती है, कुछ पे दरख्त भी लगे हुए होते हैं। वो माउंटेन्स की तरह खुश्क नहीं होते। प्लेटियर्स. These are areas of flat land well above sea level. Some plateaus are fertile while others are poor land. It depends on their height, amount of rainfall, etc. प्लेटियर्स क्या है? प्लेटियर्स ये फ्लैट एरिया होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये एरिया फ्लैट ही हो। इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सरखेज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका पार्ट होता है वो सरखेज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। नाउ प्लीज़ मूव टू पेज नंबर 7। प्लेन्स. दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होता है। कहीं कहीं इसके ग्रीनरी भी मौजूद होती है, पिक्चर देखिए आप इस तरह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मिंग के लिए। सो प्लेन्स के बाद डिज़र्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिज़र्ट सहरा को कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है और दिन में तो ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी सॉइल, ये इस तरीके की नहीं होती कि वहाँ पे फार्मिंग की जाए। ये बहुत पुअर इलाका होता है, वहाँ पे पानी भी नहीं होता। सो ऐसे इलाके में फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डेजर्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं, क्योंकि वो दिस कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स टॉप और इन पॉलर रीजन। लेक्स. सो लेक्स ऐसा एरिया होता है जिसमें काफ़ी सारा पानी होता है और इसके जो इर्द गिर्द होते हैं वो ग्रीनरी मौजूद होती है। इसका पानी ज़्यादातर या तो खारा पानी होता है, यानी कि सॉल्ट वाटर होता है, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी भी होती हैं जहाँ का पानी मीठा होता है। रिवर्स. दिस इज फ्लोइंग और मूविंग वाटर. रिवर जो है दरिया को कहा जाता है और ये बहता हुआ पानी होता है, यानी मूव करता हुआ पानी होता है, रुका हुआ नहीं होता। और इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, फ्रेश होता है और ये सारा पानी जाके कहाँ पे एंटर होता है? समंदर में एंटर हो जाता है। नाउ प्लीज़ मूव टू पेज नंबर 8. एस्टरी. दिस इज़ वेयर इम्पॉर्टेंट रिवर्स वर डन एज द एंटर द सी. एस्टरीज कैन मेक गुड हार्बर्स फॉर शिप्स. एस्टरी किसे कहते हैं? एस्टरी ऐसा इलाका है जहाँ पर रिवर्स एंटर होते हैं समंदर में, और आप सब जानते होंगे कि जहाँ पर बहुत सारे रिवर समंदर में जब जमा हो जाएंगे तो वहाँ पानी भी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हार्बर्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर पानी के जहाज़ खड़े किए जाते हैं। सो हार्बर्स को अगर हम उर्दू में बोलें तो हार्बर्स को बंदरगाह कहा जाता है।
Delta. Sometimes when a river enters the sea, it breaks into many small rivers. डेल्टा यानी कि जहाँ रिवर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं और वी शेप बना लें। पिक्चर देखिए, वी शेप की तरह एक शेप बन चुकी है और यहाँ पे रिवर जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेजिटेशन के लिए डेंजरस होता है क्योंकि वहाँ पे सैलाब आने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्क स्टार्ट कर देंगे। ओके सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।